Hello, everyone. We all know that God loves us, but at times it happens that we feel that does God really love us? We must have heard the young generation saying, okay, we do not see God, we have not seen God, so how do we believe that God loves us? So, for such people, let me have a small story for the explanation. So let us understand God's love through these slides. Yes, God loves us all. Yes, God loves all of us just like our Father does. He constantly observes us. He continuously strives hard for our betterment as a living being, as a soul, because the soul that we ourselves, we are the part of Him. We as a soul or Atma, we are the part of Him, that is Paramatma. We, like a child, keep on hiding, distancing from Him, right? Because we believe that we do not believe in God, we have not seen Him, we do not have any self experience or prachiti, what we call, or parcha, and maybe at times we have peer pressure, that is pressure from friends and other people in group, because many a times nobody discusses about God with proper faith, right? So due to lack of experiences, self experience, due to lack of self experiences, due to peer pressure or maybe half belief or whatever, many people, they just try to hide themselves from God. They do not talk openly about God, or they do not want to worship openly, they do not want to openly worship God or whatever. So for them, this is a small story. Actually, just like our Father does, God, that is what we can say, Param Pita, what we call, or Jagat Pita, what we call, that is God, Almighty. Actually, He always constantly observes us. Whatever happens, we say, no, कि okay, Bhagwan dekh raha hai. Yes, He does see us every time, every second. So yes, God observes us day one and day two, day in and day out. He observes us continuously, constantly. He also strives hard consistently for our betterment. In this particular picture, you can see, yes, God is observing us and we are hiding from God. And God constantly keeps on trying to tell us that I want to see you better. You should become better yourselves. You should compete with yourselves rather than others. So भगवान हमें अपने पिता की तरह ही हमेशा देखते रहते हैं, हमारा निरीक्षण करते रहते, क्षण क्षण में भगवान पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने या अच्छा आत्मा बने, राइट? ये भगवान हमेशा कोशिश करते रहते हैं एक पिता की तरह कि हम खुद से बेहतर रोज बने। कल जो थे हम उससे आज बेहतर बने, आज जो है उससे हम आने वाले कल में बेहतर बने। तो भगवान हमेशा हमारी, इसलिए वो हमें न सिर्फ देखते रहते हैं पर हमारी परीक्षा भी लेते रहते हैं, और वो शांति से कंटिन्यूअसली नियमित रूप से वो हमें देखते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक हमारा बेटर वर्जन देखना होता है ना? क्योंकि हमारा सबका एक ही मकसद है कि हम प्रभु को पाए, पर प्रभु को हम कैसे पा सकते हैं? प्रभु की तरह बनेंगे तो ही पाएंगे ना। एक आत्मा परमात्मा को, जीव शिव को कैसे मिल सकता है? जब हम प्रभु के जैसे बनेंगे, बनने की कोशिश करेंगे, तभी हम उनसे मिल पाएंगे। वरना हमें यहाँ पे रह के, पृथ्वी पे रह के हमारे सबके अपने अपने अच्छे बुरे भोग भोगने होते हैं। सो गॉड wants us to see better. So let us discuss about this. God keeps on trying and trying, even if we run away from Him or His teachings, or ignore Him, or even talk ill of Him to be with certain group of friends or people. वो क्या होता है कि पृथ्वी पे हमें अपने अपने ग्रुप में रहना पड़ता है, फ्रेंड सर्कल में रहना पड़ता है। तो जो फ्रेंड्स
जो ग्रुप में मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, जो वो कहते हैं हमें उनकी तरह ही बन के रहना पड़ता है, उनका कहना मानना पड़ता है। अगर हमारे विचार कुछ अलग है तो वो हमें परेशान करेंगे, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते, भले हमारा विश्वास भगवान में हो कि ना हो। तो पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, फ्रेंड सर्कल में जो है वही हम मान के चलते आगे। तो हम फ्रेंड्स के बीच में रह के भी हम हमारा मत प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर हमारा मत अलग भी है, सही भी है तो भी। बट भगवान जो है वो कभी हार नहीं मानते, वो कोशिश करते रहते हैं कि हम अपना एक बेहतर रूप उनकी तरफ रोज बढ़ा के दिखाएं। हमें खुद से बेहतर होना है रोज, और वही भगवान हमसे चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम लोग उन्होंने जो सिखाया है वो सीखना नहीं चाहते, उन्होंने जो हमको सिखाया है वो हम बिना सीखे भागना चाहते हैं उनसे दूर, या कभी कभी उनके बारे में बुरा भला भी कह देते हैं। ये होता है ना, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं तो अभी फ्रेंड्स ये बात कर रहे हैं तो हमें भी करनी पड़ती है, फ्रेंड्स हंस रहे हैं तो हमें भी उन पे हंसना पड़ता है। तो ऐसा होता है, इसलिए जो भगवान हमसे चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते अगर हम सबके बीच में उनकी राय के हिसाब से चले। तो हमारी खुद की राय डेवलप करना जरूरी है, हमारी खुद की एक राय बनाना जरूरी है, उस राय पे हमें मक्कम रहना भी जरूरी है। तो अगर हम बिलीव करते हैं कि ओके गॉड है, भगवान है, और वो हमें कंटिन्यूअसली नियमित रूप से देख रहे हैं, नित्य देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, तो हमारे भले के लिए है। हम लोग कहते हैं ना कि ऊपर भगवान बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। ऊपर यमराज के यहाँ पे चित्रगुप्त नाम के उनके एक अकाउंट रखने वाले, रिकॉर्ड रखने वाले होते हैं, वो हमारा सारा लिखा चिट्ठा लिखा वहां पे लिखते हैं, चित्रगुप्त जी है ना। तो इसलिए हमें ये सिर्फ मानना नहीं है, ये सब पुराणों में लिखा है, इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि बाकी जो फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स होंगे, क्या उन्होंने भगवान को देखा है, क्या उन्होंने भगवान के बारे में प्रचिति ली है, तो उनको पता ली है कि नहीं। पर हमें अगर पुराणों पे विश्वास है तो हम ये विश्वास मान के चल सकते हैं ना कि हाँ ऐसा ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान एक हमारा ही खुद का बेटर वर्जन हमेशा देखना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें गले लगा ले और वो हमको गले लगा ले। सो गॉड सेज आई वॉन्ट टू हग यू वार्मली, आई लव यू, बट हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनके कितने भी पुकारने पर हम नहीं जाते उनकी तरफ। अब वो कैसे हमें पुकारते हैं, क्या हमारे सामने बैठ के वो पुकारते हैं? नहीं, वो हमें जब पुकारते हैं तब हमें संकेत मिलते हैं कि भगवान हमें पुकार रहे हैं। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेशन मिलता है, हमें समझ में आता है कि ये भगवान हमें देख रहे हैं, पर हम अनदेखा करते हैं उनकी बातों को, उनकी सिखामण को हम लोग अनदेखा करते हैं। उन्होंने जो सिखाया हम उसको भूलने की कोशिश करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा बहुत बार होता है। और हाँ, हम लोग न सिर्फ उनको नजरअंदाज करते हैं, जो उन्होंने सिखाया वो भी नहीं पालते हैं, क्योंकि बस हमें फ्रेंड सर्कल में रहना है, जैसे फ्रेंड्स है वैसे हमें बनना है। इसलिए हमें देखना ये चाहिए कि चलो फ्रेंड सर्कल में है तो वो उतने तक ही रखे, हमें अपना विश्वास जिस चीज पे है वो आगे चल के लेके जाना चाहिए, ताकि हम प्रभु के प्यारे बने। अगेन हम लोग कंटिन्यूअसली भगवान से छुपते रहते हैं, कुछ बहाने बनाते रहते हैं कि नहीं नहीं भगवान आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं पूजा करूंगा। नहीं नहीं भगवान, मैं आपका काम आज नहीं कर सकता, आज तो मेरे पास बहुत दूसरे काम हैं, तो मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे आपके मंदिर में आ सकता हूँ। नहीं नहीं भगवान, आज तो मुझे पॉसिबल ही नहीं है, आज मुझे फ्रेंड की पार्टी में जाना है। तो हमारे पास 100 बहाने होते हैं भगवान का काम न करने के लिए। और भगवान का काम मतलब क्या है? अच्छा बनो, रोज बेहतर बनो, खुद से बेहतर रोज बनो। तो उसके लिए भी हमारे पास बहाने होते हैं कि आज मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि आज मैं कर नहीं सका। कि मानो रास्ते पे कोई एक्सीडेंट हुआ और उसको कोई जरूरत है, तो हमने उसको नहीं देखा, हमने नजरअंदाज कर दिया उसको, है ना। तो अगर रास्ते पे किसी को हमारी जरूरत है, किसी को क्रॉस करना है, किसी की हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए हमें। उसके लिए हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है, पहुंचना है, आज देर हो गई वैसे वैसे। तो भगवान हमें वही देखता है ना हमारे लिए, कि हम दूसरों की कितनी मदद करते हैं, हम दूसरों को कितना खुश देख सकते हैं, हम दूसरों के बारे में क्या अच्छा सोचते हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमारे मन में
क्या उथल पुथल हो रही है वही देखते रहते हैं, हमारा मन कैसे साफ है, हम कितनी मदद दूसरों की कर सकते हैं, वही भगवान देखते रहते हैं। भगवान कुछ कहते नहीं कि पूजा करो, पाठ करो, पोथी वाँचो, जप करो, ऐसा नहीं कहते भगवान। भगवान हमारा मन देखते हैं, वो साफ होना चाहिए, दूसरों की मदद हमेशा करने वाला होना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी बहाना बनाएंगे तो भगवान कहेंगे फिर तुम्हें और देर लगेगी मेरे पास आते आते, है ना। पर फिर भी भगवान बहुत शांति से हमारी राह देखते हैं। He keeps on waiting patiently for us, right? भगवान और भी बहुत कोशिश करते हैं। He tries hard with different tricks, ways and means and experiences and proofs of his love for us and his being with us. भगवान हमें बताना चाहता है, भगवान जी हमें बताना चाहते हैं कि अरे पगले मैं तेरे साथ हूं, क्यों डरता है, अरे मैं हूं, देख मैं तुमसे प्यार करता हूं। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके अपना के हमें बताना चाहते हैं। अब ये अलग अलग तरीके कौन से हैं? जब हमारे पास माता पिता है, जब हमारे पास फ्रेंड्स है, जब हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए सब कुछ है, इसका मतलब क्या है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं ना। कभी देखा है कि किसी किसी के पास अपने खुद के लोग नहीं होते? कभी देखा है किसी किसी के पास खाने पीने का सामान नहीं होता है? कभी देखा है किसी किसी को बहुत ज्यादा रोग होते हैं तो वो ठीक से खा पी नहीं सकते, उनके पास खाना होते हुए भी? तो भगवान अलग अलग तरीके से हमें दिखाते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस हमें वो समझ में आना चाहिए, है ना। वो दिखाना चाहते कि मैं हूं तेरे साथ, तू डरना मत। वो हमें दिखाना चाहते हैं पर हम वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स में ही फंसे रहते हैं, हम गलत गलत चीजों में ही मानते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो कोशिश करते रहते हैं अलग अलग तरीके से कि वो बताए कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, एकदम अपने पिता की तरह। God had certain choicest gifts for us which are truly apt for us. अब भगवान हमें हमेशा कुछ ना कुछ इतना अच्छा देना चाहते हैं, हम नादान होते हैं कि उनसे कुछ और ही मांगते रहते हैं ना, कि भगवान मुझे आज ये दे देना, भगवान मुझे आज वो दे देना, भगवान मुझे। पर नहीं, भगवान से क्या मांगना चाहिए वो भी एक कला है कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, आप जो मेरे योग्य है वो तो आप मुझे दोगे ही दोगे, पर वो मत देना कि जो मेरे योग्य नहीं है। भगवान तो भली बात ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या योग्य है, इसलिए वो हमें ऐसे ऐसे गिफ्ट्स हमें सामने लाके रख देंगे। जैसे कि अगर हम लोग अभी इस जमाने में हैं तो हमारे पास दिखने के लिए तो झाड़ पेड़ पौधे और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, पर आने वाली जनरेशन के लिए सोचो, अगर हमने उनके लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा ये सब कुछ देखने को? उनको तो शायद झाड़ पेड़ ये सब कुछ फोटो में ही दिखेगा, चित्र में ही दिखेगा, है ना। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, सिर्फ हमें अपनी गर्दन घुमा के देखने की ही एक वो है कि उतना ही हमें कष्ट करना चाहिए कि चलो देखते, सुबह उठ के सूरज का नजारा कितना सुंदर होता है, शाम को जब सूरज डूबता है तो सनसेट कितना प्यारा लगता है। भगवान ने हमें दिया बहुत कुछ है, बस वो हमें पता चलना चाहिए कि ये भगवान जी की गिफ्ट है, ये हमने नहीं कमाया है ना। ये पर्यावरण हमने कमाया नहीं है, हमें मिला है विरासत में, हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा के रखना है। ऐसी बहुत सारी गिफ्ट्स भगवान हमें देते रहते हैं और हमारे लिए अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए। Again, God tries harder without expecting anything in return. He tries to approach us in numerous ways. Finally, he reaches us and tries to present us the gift. भगवान और कोशिश करते ही रहते हैं, पर वो कुछ बदले में कुछ मांगते नहीं है। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे जन्म दिया है या मैंने तुझे इतनी अच्छी दुनिया दी है, इतना अच्छा घर दिया है, अब तू मेरे लिए ये पूजा कर, अब तू मेरे लिए दिया जला, अब तू मेरे लिए ये प्रसाद चढ़ा। भगवान ने तो कभी किसी से ऐसा नहीं कहा है। हम जो उनके लिए करते हैं वो अपने मन से करते हैं, क्योंकि हम उनको माता पिता मानते हैं। तो जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं, उनको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, वैसे हम भगवान को देते। भगवान किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं ना, तो किसी से कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते। भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है हमसे, बस हम रोज अपने से बेहतर बने, ये अपेक्षा भगवान की होती है, इतनी ही अपेक्षा होती है।
तो भगवान किसी न किसी तरह हमारी तरफ पहुंचने की कोशिश अवश्य करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमें रोज बेहतर रूप में देखना चाहते हैं। इस बार इस स्लाइड में आप देख सकते हो भगवान जी ने एक मिरर, एक अरीसा गिफ्ट किया है इस बच्चे को। अब मिरर क्यों? क्योंकि मिरर में हम खुद को देख सकते हैं, हमें खुद की अच्छी बुरी बातें समझ में आ सकती है। मिरर में सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखता, ये चेहरे के पीछे जो है ना ब्रेन, दिमाग, उसमें भी हम देख सकते हैं। हाँ, आंखों से नहीं देख सकते, मन की आंखों से देख सकते हैं कि हम कैसे हैं, है ना, भीतर से। तो भगवान हमें बताता है कि अपना खुद को देख, बाकी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम खुद को देखो और खुद से कंपटीशन करो, खुद से स्पर्धा करो और खुद आगे बढ़ो। मैं रोज तुम्हारा एक बेहतर रूप देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर अच्छाइयां पनपते देखना चाहता हूं। तो भगवान हमें रोज कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं। हमारे पास अरीसा है, मिरर है, इसका मतलब क्या? हमें रोज खुद में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी है। सिर्फ हमें खुद को मेकअप करके बहुत अच्छा दिखाना नहीं है, पर हमें अच्छा बन के दिखाना है खुद को रोज। ये भगवान हमसे चाहते हैं। फिर भी भगवान ही अगेन कीप्स waiting patiently, allowing us to take our own time to understand the truth or satya या fact and reality. He wishes to transform us into a better human being. भगवान फिर भी हमारे लिए वेट करते हैं, हमारी राह देखते हैं, शांति से वो हमें अपना टाइम देते हैं। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी कर, मैं तेरे लिए इधर बैठा हूं, ऐसा नहीं कहते। भगवान शांति से हमारी राह देखते हैं कि चलो इस बच्चे को कब समझ में आएगा, तब तक मैं उसकी जरूर राह देखूंगा, वो जरूर उसको राह पे लेके आऊंगा। सो गॉड सेज, व्हेन यू फील बेटर, जस्ट लिफ्ट अप योर हेड अप अ लिटिल. When you feel better, just lift your head up a little. I will be there. I want to see you. I love you. कि बच्चे मैं हूं तेरे साथ, बस थोड़ा सा वक्त निकाल के, थोड़ा सा मन शांत करके देखो तो सही आगे क्या है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम खुद हो तुम्हारे साथ। बस भगवान हमें इतना बताते रहते हैं रोज, बस हमें सुनना आना चाहिए, है ना। हमें ये सब कुछ भगवान से सुनना आना चाहिए। भगवान तो ये रोज कहते हैं हमको, ये हमें सुनना जानना आना चाहिए। He still allows us the time to, he still allows time to us. He keeps patience, waits for us to understand. भगवान जी देखो इस स्लाइड में आप देख सकते हो, भगवान जी शांति से बैठ के हमारे उठने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे जागने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे विषाद अवसाद में से बाहर आने के लिए रुके हैं वो। हम अपने दुखों में या अपने नैराश्य में इतने डूबे रहते हैं कि उसमें से बाहर निकलने का वेट भगवान जी कर रहे हैं। भगवान राह देख रहे हैं कि उठो बच्चे, मैं हूं तेरे साथ, है ना। वो शांति से हमारा इंतजार करते रहते हैं कि जब हमें थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा हम जरूर उनकी तरफ देखेंगे, उनको बहुत आशा है हमसे। सो ही स्माइल्स एट अस टू रिसीव अ स्माइल इन रिटर्न। भगवान जी चाहते हैं कि मैं तो तुमसे एक स्मित हास्य तुम्हारे सामने लेके बैठा हूं, मैं भी अपेक्षा रखता हूं कि तुम मेरे पास स्मित हास्य लेके आओ, खुशी खुशी आओ। Somehow gathering some strength and courage after all our excuses fail, we try his advice and look into the mirror gifted by him. तो बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में हमने बहुत कुछ उथल पुथल करके देख ली, सारे पत्ते उलट के देख लिए। जब हमें कोई काम में सक्सेस नहीं मिलता है या कोई काम हमारा बनता नहीं है, तब जाके आखिरी में हम लोग भगवान की तरफ जाते हैं। सारे बहाने छोड़ के फिर हम भगवान की तरफ भागते हैं, है ना। तो अपना टाइम लेके, सब टाइम पूरा गवा के, बाकी सब कुछ हमने ट्राई कर लिया, फिर हम जाके भगवान ने जो हमें दिखाया है रास्ता, उस पे चलने की कोशिश करते हैं। ये मानवीय मन है, उसमें हमें ऐसा ही हमेशा देखने को मिलता है, और आजकल के जमाने में खासकर ऐसा है देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं। तो जिसका हाथ, मतलब पिता का हाथ सबसे पहले पकड़ना चाहिए बच्चे ने, पर पिता का हाथ बच्चा आजकल सबसे लास्ट में पकड़ता है, क्योंकि बाकी सब उसको हाथ देते हैं, फ्रेंड सर्कल हाथ देता है और बहुत सारे मोह होते हैं, जबकि पिता का हाथ सबसे पहले पकड़ना चाहिए हमें।
पर नहीं, हम सब कुछ करने के बाद, सब जगह से हम फेल होने के बाद फिर हम आते हैं पिता का हाथ पकड़ने, मतलब परम पिता का हाथ पकड़ने, या उन्होंने जो कहा है उस पर थोड़ा बहुत गौर करते हैं या थोड़ा बहुत सोचते हैं. So we notice and keenly observe ourselves from his point of view, his glasses or teachings. So उन्होंने जो हमारे सामने मिरर रखा है, अरीसा रखा है, हम उसमें खुद को, अपने आप को देखते हैं. तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये भगवान हमें ये बताना चाहते थे, अच्छा ये मुझे समझ में आया, अच्छा भगवान ये मुझ में देखना चाहते हैं, अच्छा ये सिखाने के लिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया. हमें बहुत देर बाद पता चलता है कि भगवान का हमारे लिए क्या प्लान है. हम छोटे होते हैं, हमारी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम भगवान का प्लान समझ सकें, पर फिर भी हमें इतना ही समझना होता है कि भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा. गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो कल होगा वो भी अच्छा ही होगा. तो भगवान पे थोड़ा सा विश्वास अगर हम शुरू से करते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगी. अगर हमने ये विश्वास नहीं किया तो पहले हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर भगवान हमारे जीवन में आएंगे. तब तक तो बहुत हमारी लाइफ निकल चुकी होगी, तब तक हमने पूरी जिंदगी निकाल दी होगी और हमारे पास जिंदगी संवारने के लिए, आने वाला जन्म संवारने के लिए भी टाइम नहीं बचा होगा. तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम परम पिता का हाथ पकड़ के रखें, फिर आगे के सारे काम करें, है ना. So we realize our mistakes and repent for the delay caused in following his advice. तो हमें फिर बाद में जाके पछतावा होता है कि ओ हो मैंने भगवान ने जो कहा, इंडिकेशन दिया था, मुझे सुबह बोला था किसी ने, या मैंने सुबह सुना था, पढ़ा था कि आज ट्रैफिक जैम होने वाला है और मैंने सुना नहीं, ये रास्ता ले लिया मैंने, है ना. तो अगर हम पहले से ही फॉलो करें किसी का गाइडेंस, तो हमें ये परेशानी बाद में जाके नहीं होती है. हमारा रास्ता एकदम साफ मिलेगा और हम मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे बिना किसी दिक्कत के. So when life is hard, just lift up your head a little, because that is when the Lord is closest to you. जब हमारी मुश्किल की घड़ी होती है, हमारा टेस्टिंग टाइम होता है, तब हमें सिर्फ अपना सर ऊंचा करके देखना होता है कि कहाँ है भगवान. उस समय ढूंढना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय भगवान हमारे एकदम पास होते हैं. हमारी मुश्किल में हमें गाइड कौन करेगा? भगवान ही करेंगे ना. जब वो हमें देख रहे हैं हर पल, जब हमारे पास वो है, जब हमें वो देख रहे हैं, जब उन्होंने हमें मुश्किलें दी है तो मुश्किलों का सॉल्यूशन भी भगवान ही देते हैं. जब उन्होंने पंछी को चोंच दी है तो चोंच को चारा भी वही देते हैं. जब हमें उन्होंने बनाया है, इस दुनिया में लाया है, तो हमारा दाना पानी भी वही देखेंगे. तो सब कुछ उन्होंने हमें दिया है. तो टेस्टिंग टाइम वो परीक्षा की घड़ी है. परीक्षा की घड़ी में हम निखर के उठते हैं, है ना. जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोना भट्टी में तप के ही बहुत सुनहरा बनता है ना, उसके पहले नहीं. या कोयले की खान में से हीरा बनता है. तो भगवान की यही कोशिश है कि हम जो कोयला की तरह है, हम हीरे की तरह निखरे. यही भगवान की हमेशा कोशिश रहती है. तो हमारा जो भी टेस्टिंग टाइम, परीक्षा की घड़ी होती है ना, उसमें हमें सिर्फ भगवान का नाम लेके आगे चलना होता है, क्योंकि उस समय भगवान सबसे नजदीक होता है हमारे, और कोई शायद नहीं होता है. So Lord's advice for us is that He is with you always. So moral of this story is, yes, God loves us. Constantly He is observing us. He is with us. He is our friend, guide and philosopher. सर्वे सर्वा है प्रभु हमारे. So try to see God in every human being and living being. Not human being, I would say living being. हम आजकल देखते हैं कि प्राणियों पे या इवन पेड़ों पे कितना अन्याय हो रहा है. बहुत सारे लोग पेड़ काट देते हैं, है ना, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है, हमें अपने लिए घर वगैरह बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स बनाने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं. तो हमारे बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं. या हम लोग अपने ही आजू बाजू डोमेस्टिक एनिमल्स है या वाइल्ड एनिमल्स की हम लोग ध्यान नहीं रख पा रहे उनका. तो नहीं, हर जीव में भगवान है, वो भी हमें इसमें से पता चलता है, क्योंकि भगवान तो हर एक के साथ है. तो अगर हम जीव है और हम आत्मा है तो वो परमात्मा है, और हर एक जो जिंदा है उसमें भगवान अवश्य है. तो यही सीख हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी से या इस कहानी से मिलती है. तो गॉड लव्स अस ऑल. पर हाँ, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है.
भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, और कभी कभी जो नहीं मिलने वाला होता है ना, वो भी हमें दे सकते हैं भगवान, अगर हम उनकी बात सुने और सही तरीके से उनको अपने जीवन में उतारे तो दोस्तों, आगे के ऐसे ही कुछ विषयों पर चर्चा के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।